مہمان موجود رہیں گے جن سے ہم آج اس اہم موضوع پر بات کریں گے. چلیے ان سے ہم آپ کا تعارف کروا دیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر آصف رمیز داؤدی صاحب جو کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے ایلومنائی ہیں. رمیز صاحب آپ کا بہت استقبال کرنا چاہیں گے سلام ٹی وی کی اس بے حد خاص پیشکش میں. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سید ظفر محمود صاحب، چیئرمین ہیں زکوٰۃ فاؤنڈیشن آف انڈیا سے. محمود صاحب آپ کا بھی سلام ٹی وی کی اس خاص پیشکش میں بہت بہت استقبال کرنا چاہیں گے. آج 17 اکتوبر کا دن ہے، وہ دن جس کا ہر علی کو بے صبری سے انتظار ہوتا ہے. جو ابر یہاں سے اٹھے گا وہ سارے جہاں پر برسے گا، اور کیا خوب برس رہا ہے. ہم پروفیسر آصف رمیز صاحب کا رخ کرنا چاہیں گے جو کہ سعودی عرب سے ہمارے ساتھ اس خاص پیشکش میں موجود ہیں. سر، آج آپ کے تاثرات جاننا چاہیں گے، کیسا محسوس کر رہے ہیں آج 17 اکتوبر کے دن؟ میں بہت ہی جو خوشی بانٹنے والی بات ہوتی ہے نا، دل سے بیان کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن ایک پراؤڈ الیگیرین ہونے کے ناطے آج کے اس موقع پہ میں بہت ہی زیادہ خوشی محسوس کر رہا ہوں. اور سب سے پہلے میں دنیا کے تمام کونے کونے پہ رہ رہے جتنے بھی علی ہے جو سیلیبریٹ بھی کرتے ہیں، ان کو سر سید ڈے کی آپ کے چینل کے ذریعے مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا. اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو سر سید ڈے منایا جاتا ہے، جو 17 اکتوبر کی جو بات کرتے ہیں، یہ تو ویسے ایک بین الاقوامی ایک موقع ہو گیا ہے، پوری دنیا میں لوگ اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. لیکن خاص طور سے جب ہم علیگس کی بات کرتے ہیں، جو وہاں سے تعلق رکھتے ہیں، جو وہاں کے کلچر کو سمجھتے ہیں، وہاں رہ چکے ہیں، وہاں علی گڑھ کے اندر کے ماحول کو دیکھ چکے ہیں، اور وہاں سے جو کہتے ہیں نا، آپ نے بھی خود ہی کہا کہ جو ابر یہاں سے اٹھے گا وہ سارے جہاں پہ برسے گا، اور آپ نے خود کہا کہ برسے گا نہیں، وہ جو اس وقت کا ویژن تھا وہ آج برس رہا ہے. سینکڑوں سالوں بعد بھی دیکھیں کہ پوری دنیا میں پورا نام جو روشن کرنے کی بات ہوتی ہے، اپنے ادارے کی، اپنے ملک کی، اپنے قوم کی، اپنے ملت کی، اپنے محلے کی، اپنے ہر ایک چیز جو ہم نے ایک مثال قائم کرتی ہے. اور یہ کیوں ہو پایا؟ یہ اس لیے ہو پایا کہ سر سید احمد خان کا جو ایک ویژن تھا، اس ویژن میں جو تعلیم کی جو اہمیت تھی، اور جس طریقے سے انہوں نے ایک سپنے دیکھے اپنی آنکھوں سے، تو ہر کوئی اپنی آنکھوں میں ہر کوئی سپنے دیکھتا ہے، سپنے سنجوتا ہے، لیکن عظیم ہوتا ہے وہ انسان جو دوسروں کے لیے اپنی آنکھوں میں سپنے دیکھ سکتا ہو. اور وہ ویژن لے کے جب انہوں نے تعلیم کی اہمیت رکھی، اور کہتے ہیں نا کہ وہ علم کی شمع سے ہو ہستی کا اجالا، وہ علم کی شمع سے ہو ہستی کا اجالا، لو اس کی ہو مدھم تو لہو اپنا مٹا دو، لہو اپنا لگا دو اس میں. تو اس میں یہی ہے کہ جو سر سید احمد خان کی انہی چند باتوں کے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر علم کی روشنی اس کی جو لو مدھم ہوتی ہے تو اس میں خون تک ملانے کی بات، وہ ویژن لے کے جب وہ چلے اس وقت، تو آج پوری دنیا میں یہ ابر برس رہا ہے. اور اس کی مثال میں اس طریقے سے دینا چاہوں گا کہ ٹھیک 17 اکتوبر 1817، 17 پہلے 17 بعد، بہت سے لوگوں کو یاد نہیں رہتا ہے، تو اس کی آسان طریقہ یہ ہے کہ 17 پہلے 17 بعد میں، اور 10 اکتوبر کا مہینہ ہوتا ہے. تو 17 اکتوبر 1817 میں، اور اس وقت سے لے کے آج تک، اور جب یہ یونیورسٹی کی بنیاد بنی، اور جو 1920 میں پوری طرح سے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو ایک طرح سے ایک نام مل گیا، تب سے لے کے اب تک جو پوری دنیا میں، اور دنیا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں خود 25 سالوں سے اس گلف ریجن میں رہ رہا ہوں، کویت ہو، بحرین ہو، سعودی عرب ہو، سعودی عرب میں ہوں، میں یہاں پہ میں نے اس کے نور کو جگمگاتے ہوئے محسوس کیا ہے، دیکھا ہے، اس کا حصہ بنا. جبیل کے اندر میں تھا 10 سال پہلے، 10 سال میں یہاں جو دمام کے پاس جبیل ہے، جبیل جیسے شہر میں اتنے شاندار طریقے سے اس کو منایا جاتا ہے. تو اس کو میں ایسے بتاؤں کہ خود 25 تاریخ کو یہاں پہ ایک بہت بڑا فنکشن ہونے والا سر سید ڈے. آج ریاض کے اندر سر سید ڈے منایا جانے والا ہے، کچھ دیر میں منایا جائے گا. ٹھیک اسی طریقے سے دمام کی بات کریں، آپ جدے کی بات کریں، اور یہ جو ایک روشنی ہے یہ اس وجہ سے ہو پائی کہ علم کی اہمیت کو سمجھا گیا، اور جس طریقے سے لوگوں نے اس کو بڑھایا، ایک جو ایک کہتے ہیں نا ایمبیسڈرز بن کے اپنی ایک ریپرزنٹیشن دیا، جو ریفلیکشن ہوا، جو سکھایا گیا یونیورسٹی کے اندر، ان چیزوں کو جب اپنے پرسنالٹی اور شخصیت کے اندر دیکھ کے اپنی کامیابی
की तरफ बढ़ के, जिसमें यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा रोल है और खास तौर से सर सैयद अहमद खान का बहुत बड़ा रोल है। तो पूरी दुनिया में इसको मनाया जाता ही है ईद की खुशियों की तरह। सऊदी अरब में खास तौर से इसे बहुत ही जोरों शोर से मनाने की पूरी तैयारियां हो रही है और आगे 25 तारीख को जुबैल के अंदर, जहां मैं अभी इस वक्त मौजूद हूं, यहाँ भी सर सैयद डे की बहुत ही शानदार तरीके से मनाने की तैयारियां बिल्कुल आसिफ रमीज साहब, आपने बिल्कुल सही कहा। एएमयू से हम सबको जो तमीज तहजीब मिलती है वो ता जिंदगी हमारे साथ रहती है। और डॉक्टर प्रोफेसर आसिफ रमीज दाऊदी साहब, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, क्योंकि आप जो हैं वो सऊदी अरब में हैं और बहुत अरसे से आपने भी देखा होगा यहाँ से जो भी तालिब इल्म, जो भी स्टूडेंट यहाँ से निकलता है, कहीं ना कहीं वाबस्तगी जो है एएमयू में रह जाती है। और तालीम को आगे बढ़ाने के लिए हमने देखा है कि बहुत सारी स्कॉलरशिप्स जो हैं वो हमारे जो एलुमनाई हैं, एसोसिएशंस हैं, उनकी तरफ से यहाँ पढ़ने वाले बच्चों को दी जाती है। यानी वो शमा जो रोशन की गई थी उसकी लौ को अभी भी यहाँ के जो निकले हुए एक्स स्टूडेंट्स हैं, अलीग्स हैं, उन्होंने कायम और दायम रखा है ताकि आने वाली नस्लें तालीम से रोशनास होती रहे। ये बात आपने बिल्कुल सही की। जिसने भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है और कुछ दिनों वहां रह गया या वहां के कल्चर को देखा, ट्रेडिशन को देखा और किस तरह से मेहनत और मुशक्कत करके उन परिवारों से भी लोग वहां आते हैं जिनके घर में बहुत मुश्किलों और परेशानियों के साथ तालीम मुहैया के लिए आगे भेजा जाता है बच्चों को। तो जब वो ये समझ जाते हैं तो उनके दिल में एक जज्बा पैदा होता है और वो जज्बा होता है कि किस तरीके से जब हम किसी मुकाम पे पहुंचते हैं तो उस इदारे के जरिए, उस इदारे के नाम से एक जो एलुमनाई एसोसिएशन होता है, वो कोशिश ये करती है कि जहां जहां जिस तरह से सिर्फ इसलिए नहीं कि उन लोगों की तालीम के लिए कुछ मदद की जाए, बल्कि जितने भी कम्युनिटी वेलफेयर और दूसरे ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं इसमें भी आगे बढ़ चढ़कर ये सब हिस्सा लेते हैं। बिल्कुल सर, हमारे साथ एक और खास मेहमान भी मौजूद हैं, उनका भी हम तारुफ करवा देते हैं। डॉक्टर सरवर हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं एएमयू स्टूडेंट्स यूनियन के, दुबई से ये हमारे साथ मौजूद। हमारे साथ प्रोफेसर आसिफ रमीज साहब मौजूद हैं, जिनसे हम लगातार बात कर रहे हैं। दाऊदी साहब, आपसे हम जिक्र कर रहे थे कि किस तरह से आज भी जो है एलुमनाई एसोसिएशंस यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चों के लिए, जो जरूरतमंद बच्चे हैं, उनको खास तौर पर मदद करती हैं, जो कि दुनिया में बेमिसाल है। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। मैं अपनी बात पूरी यहाँ पे रख देता हूँ। वैसे तो देखें कि दूसरी जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उन लोगों के भी अपने एसोसिएशंस होते हैं, वो भी अपने अपने प्रोग्राम्स करते हैं और लोगों की मदद करते हैं। लेकिन जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तलबा पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान के अंदर तो है ही, पूरी दुनिया में अभी भी आप देख रहे हैं कि कैसे दुबई से लोग जुड़े हुए, मैं सऊदी से हूँ, हिंदुस्तान से लोग जुड़े हुए, ये तमाम लोग जिस तरह से खिदमत देने की कोशिश करते हैं, जो जज्बा रखते हैं, पहली चीज जज्बा ये है कि हमने ये देखा है कि इनके अंदर एक बहुत ज्यादा दिली मोहब्बत पैदा हो जाती है, कनेक्टिविटी जो है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होती है। और वो जज्बा जो मैं आपसे कह रहा था उस वक्त थोड़ी देर पहले, कि जो उस यूनिवर्सिटी में रह जाता है, खासतौर से वहां पढ़ाई करता है, फिर उस चीज को समझता है कि कैसे हम आने वाले जनरेशन को किस तरह से तालीम की रोशनी मुहैया करवाएं, और अगर किसी तरह से मदद का एक जरिया बन सके या किसी भी तरीके से कुछ हम ऐसी कुछ चीज कर जाएं जिससे लोगों को बड़ा फायदा हो, इसमें एलुमनाई एसोसिएशन का बहुत बड़ा रोल रहता है। मैंने तो देखा है गल्फ के अंदर तमाम उन कंट्रीज में खुद देखा है, जैसा मैंने कहा कुवैत में, बहरीन में, सऊदी में तो खैर पिछले 20 साल से मैं हूं, लेकिन बाकी तमाम दूसरे इलाकों में भी लोग जो है एक सर सैयद डे, कुछ ये भी एक लोग कहते हैं कि सर सैयद डे एक बार होता है, लोग एनुअल डे करते हैं और फंक्शंस मनाते हैं, गेस्ट को बुलाते हैं, उसके बाद कुछ खास होता नहीं। लेकिन अगर सच्ची बात देखी जाए तो सच्चाई यह है कि मैं जुबैल की मिसाल दूं, मैं जद्दा की मिसाल दूं, मैं दम्माम और रियाद की मिसालें दूं, तो हमने देखा है, मैं अपनी एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, उसका हिस्सा रहते हुए, कि किस तरह से खुद यहां रह रहे हिंदुस्तानियों की, खुद किस तरीके से वहां रह रहे जो जरूरतमंद लोग हैं उनकी, और खुद एएमयू से जुड़े वाबस्ता रखते हैं जो लोग, उनकी मदद करने में जब भी मौका मिलता है इस एसोसिएशन के जरिए आगे बढ़ते हैं। और एक अहम बात आपको मैं और बताऊं, लोगों को एक बड़ा मिसकंसेप्शन रहता है,
वो आम तौर से लोग ये कहते हैं कि ये जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, उसमें सिर्फ मुस्लिम तलबा होते हैं या मुसलमानों की बात है। ये जो सर सैयद अहमद खान का विजन जो मैं उस वक्त कह रहा था, जो प्रूडेंस, जो हिकमत अमली की बात थी, और जो हर कोई ये मिसाल देता है कि वहां का पहला ग्रेजुएट जो ईश्वरी प्रसाद थे, आज भी मैं बताऊं कि यहाँ भी जो इवेंट्स होते हैं, जो प्रोग्राम्स होते हैं, जो लोग होते हैं, जिन तक मदद पहुंचती है, जो इसमें हिस्सा लेते हैं, वो सिर्फ मुस्लिम्स नहीं होते हैं। जो स्टूडेंट्स होते हैं वो मुसलमान भी होते हैं, वो हिंदू भी होते हैं, वो क्रिश्चियंस भी होते हैं, और बड़े प्यार और मोहब्बत से रहते हैं, और बहुत ही ज्यादा एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं बिल्कुल आपने बिल्कुल सही फरमाया। एक कौमी हम आहंगी की जो बात है वो हमने अलीगढ़ में रहते हुए देखी है। हर मौके पे, हर तीज त्योहार पे हम एक दूसरे के साथ रहते हैं, और शायद यही अलीगढ़ की खूबसूरती है जो हम सभी आगे लेकर चलते हैं। परस्ती की यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरत है। प्रोफेसर आसिफ रमीज दाऊदी साहब, आपका रुख करना चाहेंगे और आपसे हम जानना चाहेंगे, खवातीन के जिक्र के बगैर शायद आज का जो हमारा ये डिस्कशन है वो कहीं अधूरा रहेगा। अब्दुल्ला गर्ल्स कॉलेज, अब्दुल्ला जो विमेंस कॉलेज है, और वहाँ के जो तमाम तर तालीमी इदारे हैं, एक रौनक हमेशा से खवातीन से रही है। जो कहा जाता है वजूद जन से है कायनात में रंग, ये अलीगढ़ को देखकर बिल्कुल सही बात जो है ये सादिक आती है। और ये भी शुरू से कहा जाता है कि एक जो माँ होती है वो पूरे खानदान की परवरिश करती है। अलीगढ़ की जो तमीज और तहजीब लेकर हमारी यहाँ से बच्चियां निकलती हैं, उसके बारे में आपके क्या कुछ तासुरात हैं सर? उनके नशोनुमा, तालीमी नशोनुमा को लेकर एएमयू ने कितना अहम रोल अदा किया है? बहुत ही अहम क्वेश्चन है, बहुत ही अहम सवाल है, और मुझे आपकी तारीफ करने में बिल्कुल मुझे लग रहा है कि आपने दिल को छुआ, क्योंकि आमतौर से होता क्या है कि जनरल डिस्कशंस हो जाते हैं और बहुत अहम पहलू रह जाता है। हम जब जानते हैं कि अगर हम तरक्की कर सकते हैं तो तभी कर सकते हैं कि जब हम किसी भी तरीके से, चाहे हम कहते हैं ना मेल फीमेल्स या जो बॉयज हैं, गर्ल्स हैं, बगैर किसी डिफरेंशिएशन के जब हम आगे बढ़ते हैं तो ज्यादा अच्छी तरह से तरक्की कर सकते हैं। और ये विजन सर सैयद अहमद खान का था। इस सवाल के लिए मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि इसमें बहुत ही अहम रोल अदा करती हैं लड़कियां, और वो कई शोबों में तो लड़कों से कहीं ज्यादा बेहतर करती हैं। और यहाँ पे जब मैंने अपने जमाने में देखा था, उसके बाद मैंने विजिट की यूनिवर्सिटी कई बार, और उन तमाम लोगों को जब हमने दुनिया में अलग अलग शोबों में काम करते देखा, या अपने फ्यूचर जनरेशन की चीजों को संवारते हुए देखा, तो मुझे लगा कि किस तरीके से अलीगढ़ के अंदर, आपने अब्दुल्ला हॉल का जिक्र किया, किस तरह से लड़कियां वहां महफूज रहती हैं, बड़े अच्छे तरीके से वहां तालीम हासिल करती हैं, और शाना बशाना वो कहते हैं ना अपने फैमिली को आगे ले जाने में किस तरह से अपना कंट्रीब्यूशन देती है। इसकी जो मिसाल आप आज देखें तो खुद आप सऊदी अरब के अंदर भी मैं हूं, यहाँ देखें किस तरीके से, कैसे आज की तारीख में कोशिश ये हो रही है कि किसी भी तरीके से जो एक विमेन एम्पावरमेंट की बात होती है, उनको कैसे और ज्यादा नॉलेज देके, तालीम की रोशनी देके कैसे उनको आगे बढ़ाया जाए। और आपने बहुत ही सही तरीके से एक और बात रखी कि अगर हम एक किसी educate a girl, we just educate the entire family, and if we educate a man, we educate an individual. तो ये जो हम कहते हैं ना कि अगर हम लड़कियों की एजुकेशन की बात करते हैं, उनकी तालीम की बात करते हैं, तो हम सिर्फ पूरी फैमिली ही नहीं, पूरी सोसाइटी और पूरे जनरेशन को, क्योंकि माँ का जो एक रोल होता है वो बहुत अहम रोल होता है, बचपन से लेके आगे यानी जवानी और बुढ़ापे तक जाते जाते माँ का रोल, उसका कोई वो नहीं, कोई बदल नहीं है। और अगर वो तालीमी एतबार से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने जो एक प्लेटफॉर्म दिया, सर सैयद अहमद खान ने जिस तरीके से वहां पे जो बॉयज और गर्ल्स के लिए जो तालीम की जो फैसिलिटीज मुहैया करवाई, खास तौर से जब हम मॉडर्न एजुकेशन की बात करते हैं, आज देखें कितनी जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल दाऊदी साहब, हम आपसे भी बातचीत जो है वो जारी रखेंगे। और आसिफ रमीज दाऊदी साहब, आपसे भी जानना चाहेंगे, क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे सलाम टीवी के इस खास प्रोग्राम में? मेरा मैसेज बहुत ही स्ट्रेट है, जिस तरीके से अभी आपका पहला सवाल था इसके पहले कि विमेन एम्पावरमेंट में, तो हमारी ये कोशिश होनी चाहिए। मैं हमेशा कई जगहों पे इस बात को कह भी चुका हूं कि जो हम अमूबा कहते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ओल्ड बॉय एसोसिएशन, उसमें बॉय, मैं ये नहीं कहता हूं कि कोई ऐसी
मतलब उसमें कोई बड़ी चेंजेस की जरूरत है, लेकिन अगर ये मैसेज उन तमाम अलुमनाई एसोसिएशंस को पहुंचे तो मैं चाहूंगा कि ऐसा कुछ नाम हो जिसमें गर्ल्स भी ये फील करें कि उनके लिए भी ये नाम है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ओल्ड बॉयज एसोसिएशन से कुछ हटा के उसको एक कॉमन एक ऐसा किया जाए कि लड़कियां भी उस नाम से हालांकि लड़कियां भी जुड़ी हुई हैं, जितनी भी वहां से तालीम याफ्ता लीग बरादरी की जो फैमिलीज हैं वो सब एक दूसरे से काफी एक कनेक्शन है, मोहब्बत रखते हैं। लेकिन एक ये मेरा मैसेज है। और दूसरी चीज है कि सर सैयद अहमद खान की जिंदगी से अगर हम कुछ सबक लेते हैं और हमने अगर उनका रिफ्लेक्शन दिखाना है तो एक प्रूडेंस का उन्होंने दिया था कि हिकमत अमली से काम लेना बहुत जरूरी होता है। आप देखें कि आज कई ऐसे मसले मसाइल आते हैं, हिंदुस्तान के अंदर भी आते हैं, और कभी कभी ऐसा लगता है कि हुकूमत के साथ कुछ मसले मसाइल हैं तो हम डायलॉग की बात करें, हम डिस्कशन की बात करें, बजाय इसके कि हम किसी तरह से कोई बहुत सख्त नाराजगी उठा के कुछ जोश और जज्बा। जी बिल्कुल बिल्कुल, और यही जोश और जज्बा हमेशा